5 राज्यमाय विधानसभा चुनाव री घोषणा। उत्तर प्रदेश माय 7 चरण माय, जबकि पंजाब, उत्तराखंड और गोवा माय 1 चरण माय और मणिपुर माय 2 चरण माय वेला मतदान। 5 राज्य माय 10 मार्च ने वेली मतगणना। बीएसएफ अकादमी टेकनपुर ग्वालियर माय पासिंग आउट परेड रो कर्यो जा रह्यो है आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कया सीमा सुरक्षा बल देश री सर्वोच्चतम सुरक्षा बड़ा माय सु एक। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर माय कोरोना री स्थिति और रोकथाम री तैयारी करी समीक्षा। एलकारा ने कोरोना रा नोवा वेरिएंट ओमिक्रॉन ने लेर कीणी भी आपात स्थिति सु निबटवा रा दीना निर्देश। राजस्थान विश्वविद्यालय मनायो 31वां दीक्षांत और 76वां स्थापना दिवस समारोह। राज्यपाल कलराज मिश्र समारोह ने वर्चुअली कर्या संबोधित। उत्कृष्ट प्रदर्शन करवाला पड़ेसरिया ने स्वर्ण पदक और पीएचडी धारका ने ऑनलाइन पार्टी डिग्री। प्रदेश में लगातार बढ़तो जा रह्यो है कोरोना संक्रमण। नोवा मामला रा बढ़वारे साथ ही एक्टिव मरीजा री संख्या भी बढ़ी। किशोरा और युवा में टीकाकरण खातर उत्साह सु शासन और प्रशासन में राहत। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके सागे अनुजा और चालो खबर जोवा विगतवार। भारत निर्वाचन आयोग आज 5 राज्य में विधानसभा चुनाव री तिथियां ऐलान कर्या। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा खातर चुनाव री घोषणा करेगी। घोषणा रे मुजब उत्तर प्रदेश में 6 चरण में होबाड़ा चुनाव रे तहत पहलो चुनाव 10 फरवरी ने वेला, बटे मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च ने 2 चरण में चुनाव वेला, जबकि पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में चुनाव संपन्न वेला। इनके साथ ही आयोग चुनाव रे दौरान कोरोना गाइडलाइन की कड़ाई सु पालना करबारा भी निर्देश दीना है। 5 राज्य विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च ने वेली। Total 7. All the 5 states combined together will be completed in 7 phases. The first date of the issue of notification will be 14th January 2022, and which will start from Uttar Pradesh. This is the first phase of Uttar Pradesh. The issue of notification is 14th January. Last date of nominations 21st January. Scrutiny of nominations 24th January. Last date of withdrawal of candidature 27th January, and date of poll 10th February 2022. This is the first phase. Now let us come to the second phase, which is a very important phase. In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in one phase, Uttarakhand in one phase, Goa in one phase. So Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Goa. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. And here the issue of notification will be 21st January. Last date of nominations 28th January. Scrutiny of nominations 29th January. And last date of withdrawal of candidature 31st January. And date of poll 14th February, that is Monday. Third phase, only Uttar Pradesh. That is issue of notification 25th January. Last date of nominations 1st February. Scrutiny of nominations 2nd February. Last date of withdrawal of candidature 4th February. And date of poll 20th February, that is Sunday. Uttar Pradesh fourth phase. Issue of notification 27th January. Last date of nominations 3rd February. Scrutiny of nominations 4th February. Last date of withdrawal of candidature 7th February. And date of poll 23rd February. Uttar Pradesh fifth phase and first phase of Manipur. Manipur will be done in 2 phases. So on 5th phase we will be having Uttar Pradesh 5th phase and Manipur first phase. Here the issue of notification is 1st February. Last date of notification, last nomination 8th February. Scrutiny of nominations 9th February. Last date of withdrawal of candidature 11th February. And date of poll will be 27th February 2022.
Uttar Pradesh 6th phase and Manipur 2nd phase. Here the issue of notification will be 4th February 2022. Last date of nominations 11th February 2022. Scrutiny of nominations 14th February 2022. Last date of withdrawal of candidature 16th February and date of poll 3rd March, that is Thursday. That way Manipur also completed the 6th phase. Uttar Pradesh 7th phase. Issue of notifications 10th February. Last date of nominations 17th February. Scrutiny of nominations 18th February. Last date of withdrawal of candidature is 21st February and date of poll is 7th March. So on 7th March all polling will be over and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. Last time 2017, the election was announced on 4th of January and the counting was on 11th and here we are announcing on 8th. So we are squeezing the time as also and the faces also. And that particular schedule will also be given to you and how the faces of UP have been put in 7 phases will also be provided to you by the media cell here. And we have ensured that in all 7 phases of UP, there should be equitable to be distribution of the assemblies and that particular map will be given to you by the सीमा सुरक्षा बल री काणीसू बीएसएफ अकादमी टेकनपुर ग्वालियर माए पासिंग आउट परेड राखी जा रही है। परेड माए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुआ। आपरा संबोधन माए बड़ा कया कि सीमा सुरक्षा बल देश री सर्वोच्चतम सुरक्षा बड़ा माएसू एक है जो 1971 रा युद्ध माए आपरी अमिट छाप छोड़ी। यह बल मुश्किलारे पाछे भी चोखा परिणाम दिया है। आज आप एक प्रशिक्षु अधिकारी से पूर्ण रूपेण अधिकारी का दर्जा प्राप्त करने जा रहे हैं। यह अवसर भविष्य की नाजुक परिस्थितियों, जिम्मेदारियों एवं निरंतर चुनौतियों की शुरुआत है। आज देश सुरक्षा की दृष्टि से विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। हमारी जमीनी एवं समुद्री दोनों सीमाएं राष्ट्र विरोधी तत्वों की घुसपैठ, संगठित अपराध एवं आतंकवाद की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। बल के युवा कमांडर होने के नाते आपको देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। यहां तक कि देश की आंतरिक सुरक्षा स्थिति भी चुनौतियों से भरी है, जिनका सामना करने में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। अकादमी के अनुदेशकों ने जो ज्ञान, निपुणता एवं व्यवहार आपको प्रदान किया है, उसकी असली परीक्षा आपके बटालियन पहुंचते ही प्रारंभ हो जाएगी, जहां आपको सच्चे लीडर साबित होना होगा। आपके जीवन में ऐसे कई अवसर आएंगे जहां आपको चुनौतियों एवं खतरों का सामना करते हुए अपने मानसिक एवं शारीरिक साहस का परिचय देना होगा। आपने आज अपने आप को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। आज के बाद राष्ट्र हित ही आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। सीमा सुरक्षा बल की तैनाती के दौरान कई बार आपको जोखिम भरे सख्त निर्णय लेने होंगे। ऐसे हालत में भी आपको कानून के दायरे में रहते हुए सच्चाई, गरिमा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता के साथ कार्य करना होगा। आपको हमेशा अपने जवानों की आवश्यकताओं एवं कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए उन पर विशेष ध्यान देना होगा। आपकी अव्वल दर्जे की कर्तव्य परायणता एवं सत्यनिष्ठा ही आपकी इस वर्दी का आईना होगी। आप हमेशा याद रखें कि अपने अधीनस्थ कर्मियों का एक असरदार कमांडो या कमांडर बनने के लिए पहले अपने आप को उनके अनुसार ढालना होगा। जितनी जल्दी आप ये कर सकेंगे, आपके लिए सेवा उतनी ही आसान होगी।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर में कोरोना संक्रमण री स्थिति और इनरी रोकथाम ने लेर वरिष्ठ एहलकारा री बैठक ली। वड़ा कोरोना री रोकथाम ने लेर करी जा रही तैयारियां री समीक्षा करी और एहलकारा सु विचार विमर्श कर्या। वड़ा कहा कि तमाम एहलकारा ने कोरोना रा नोवा वेरिएंट ओमिक्रॉन ने लेर कीड़ी भी आपात स्थिति सु निपटवा खातर तैयार रहना चाहिए। पूरी दुनिया में और उसी क्रम में भारत में भी ओमिक्रॉन और कोविड के डेल्टा वेरिएंट के केसेस बहुत बढ़े हैं। 29 दिसंबर से लेकर के 6 जनवरी तक या 7 जनवरी तक यदि मैं बात करूं तो आने वाले केसेस पर डे केसेस की संख्या 9000 से बढ़कर के 1 लाख क्रॉस हुई है। लगभग 11 गुना से ज़्यादा बर्ड केसेस बढ़े हैं। हालांकि इस बार जो कोविड का वेरिएंट देश में और दुनिया में सब जगह है वो उतना घातक फैटल नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता 6-7% हो रही है, लेकिन फिर भी जिस गति से बढ़ रहा है और जिस तरह का अनुमान है उसको देखते हुए लगता है कि ये संख्या बहुत बढ़ने वाली है और इसके साथ साथ में कोई नया म्यूटेंट न आ जाए, इसको लेकर के एक बार विचार किया था और सारे अधिकारियों के साथ में बैठकर सबके साथ में बैठकर अब तक जो तैयारियां हुई है उसकी समीक्षा की है और कुछ निर्देश दिए हैं कि किस तरह से हमें आने वाले समय में यदि ये पेंडेमिक का रूप फिर से लेता है तो हमें उस आपात स्थिति में किस तरह की तैयारी अभी करनी चाहिए। इन सब विषयों पर अभी चर्चा की है। राजस्थान विश्वविद्यालय में आज 31वां दीक्षांत और 76वां स्थापना दिवस समारोह वर्चुअल माध्यम से मनाया गया। समारोह में खास पावनारा रूप में राज्यपाल कलराज मिश्र वर्चुअल माध्यम से जुड़या। इन भगत चोखो प्रदर्शन करवाला पड़ेसरिया ने स्वर्ण पदक और पीएचडी आला ने ऑनलाइन डिग्रियां दी की। इन भगत कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन, कुलसचिव केएम दूडिया सैती गणमान्य लोग मौजूद हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय का 31वां दीक्षांत समारोह में राज्यपाल महोदय की गरिमा उपस्थिति के साथ में ये समारोह आयोजित किया गया। जैसा आप सबको विदित है कि 8 जनवरी 1947 को हमारे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो कि आज इस 2022 में 76वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। 75 सालों में जो विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई है, हमारे यहाँ के जो शिक्षक गण हैं, हमारे यहाँ से जो विद्यार्थी गण जो यहाँ से निकले हैं, उन्होंने पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि भारतवर्ष में अपना परचम फैलाया है। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि ये भारत के 10-15 उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों की श्रेणी में आता है। ये राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए ही अपनी कोशिश में अग्रसर नहीं है, बल्कि ये विश्वविद्यालय पूरे देश के छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड वैक्सीनेशन और कोविड की समीक्षा बैठक में संबोधित कर्या। वणा कहा कि कोविड से बचाव खातर वैक्सीनेशन सबसे कारगर उपाय है। वणा कहा कि छोटा टाबरा रो वैक्सीनेशन पे को शुरू कर्यो जावे और बूस्टर डोज रो दायरो भी बढ़ायो जावे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़तो जा रहा है। काल प्रदेश में 3,300 नोवा संक्रमित मिलया। इनमें सुबसुबत्ती 1,527 मामला जयपुर में दर्ज कराया गया। इनके अलावा जोधपुर में 440, अलवर में 219, उदयपुर में 189, बीकानेर में 187, अजमेर में 103, कोटा में 100 नोवा कोरोना मरीज मिलया। काल जयपुर और करौली में इन बीमारी से 2 लोगों की मौत वही। इन बीच प्रदेश में सक्रिय मामला 10,000 रह पार पूग गया। 15 से 18 बरस रा किशोर किशोरिया रा वैक्सीनेशन ने लेर उत्साह देखने ने मिल रहा है। जयपुर राज्य केलॉन सभाखाना रा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर माते रोजीना 300 से 400 रे बीच टीका लगाया जा रहा है। वैक्सीनेशन केंद्र माथे यूएनडीपी रा राष्ट्रीय कार्यक्रम एहलकार गिरीश दवे सेंटर माथे वैक्सीनेशन स्थिति रो जायजो लीना और स्वास्थ्य कर्मियों ने जरूरी दिशा निर्देश दीना। और 7 तारीख तक हमने 1035 लोगों को लगा दिया। आज करीब 30 लोगों को लग चुका है। अभी मौसम की वजह से थोड़ा धीरे धीरे आ रहे हैं लोग। लगता है कि अभी मौसम खुलेगा तो लोग ज़्यादा आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करके और इस बारिश के मौसम में कोरोना से बचाव करना हमारी एक
प्राथमिकता बन रही है और हम इसको जोर शोर से निभाएंगे, चाहे बरसात आए चाहे ओले गिरे। हमारी टीम पूरी डटी हुई है। आज मैं जेकुलोन में आया हूँ और आज काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और वैक्सीनेशन होने के बाद ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं था, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं अपने दोस्तों से और सभी रिश्तेदारों से कहना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं। मैं काफ़ी दिन से इस बच्चे को वैक्सीन का इंतज़ार कर रहा था और आज मेरी वैक्सीन लग गई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं काफ़ी स्वस्थ हूँ। मैं अपने सारे मित्रों से यही कहूँगा कि वह भी वैक्सीनेशन कराएं और इस कोरोना की महामारी से निजात पाएँ। मुझे वैक्सीन लगवा के बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब अब एक सिक्योरिटी फील होती है और मैं सब अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करूँगा कि आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। इट्स सेफ, नॉर्मल कुछ नहीं है, मतलब जो लोग डर रहे हैं उस हिसाब से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अरचालो अठेले से थोड़ी सी पिसाई बेगई पच्छा वाला। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। અભિસાઈ પછે પે 101 એક બાર આપનો ગણગણો સ્વાગત। કોરોના મહામારી સુ બચાવ ખાતર 15 સુ 18 વર્ષના લોકોને लगाया जा रहा कोविड टीका ने ले घणो चाव नजर आ रहा है। साथ ही वैक्सीन लगवावा पछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार भी जता रहा है। पूरी कंप्लीट है। जब अडल्ट्स का आया था फैसला तो सबने लगवा ली, बच्चों को भी सबको लगवानी चाहिए, इतना कुछ भी पेन नहीं हो रहा। थोड़ी इतनी भी भीड़ भाड़ नहीं है, अंदर आप आराम से आए, अपना स्लॉट करवाएं। और एक दिन पहले हमने स्लॉट करवाया, आराम से वैक्सीन लग गई और थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इतना अच्छा फैसला लिया और हम सब ने आराम से लगवा ली वैक्सीन, कोई दिक्कत नहीं। हमने बहुत दिनों से स्लॉट बुक करा रखा था कोविन पे, बट आज फाइनली लग गई है। और पापा को भी टेंशन रहती थी क्योंकि मैं स्कूल जाती थी ऑटो से वगैरह, तो भीड़ भाड़ में, तो फाइनली आज, और थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर। तो बहुत दिन से इंतज़ार था मेरे वैक्सीनेशन का और अभी वैक्सीनेशन हुआ है तो मैं टेंशन से फ्री हुई हूँ, और क्योंकि इससे बीमारी अभी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इससे तुरंत आराम पाने के लिए, टेंशन फ्री होने के लिए मैं पीएमजी और सभी मेंबर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ। 1 साल से वैक्सीनेशन का इंतज़ार था और जो वैक्सीनेशन आया उसमें काफ़ी अच्छा वो है कि लगवा लिया और अब कोई खतरा नहीं रहेगा आगे। कोरोना री तीसरी लहर सु निपटवा खातर चिकित्सा महकमा री काणी सु युद्ध स्तर माते तैयारी करी जा रही है। इन सिलसिला में जयपुर जिला रा 32 उपजिला सफाखाना में नोवा ऑक्सीजन प्लांट तैयार कराया गया है। स्थानीय विधायक लक्ष्मण मीणा बताया कि किन्हीं भी मरीज ने ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आए, इन खातर पूरी तैयारी कर ली की है। साथ ही उपजिला सफाखाना में 30 बिस्तर रो डेडिकेटेड कोरोना वार्ड भी तैयार करो गयो है। ये तीसरी लहर है जो आई गई, उसके लिए हमने उप जिला अस्पताल बस्सी में काफ़ी अच्छी तैयारी की है। हमारे डॉक्टर्स यहाँ 30 डॉक्टर है, करीब 30 बेड है कोरोना के लिए, उन्होंने अलग से तैयार करके रख रखी है। जो पिछली टाइम पर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम रही थी, तो ऑक्सीजन प्लांट हमारा तैयार हो गया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैंने 25 लाख रुपए विधायकों से दिए हैं। इस प्रकार से हमारी अच्छी प्रिपरेशन है कि अगर तीसरी लहर आती है तो हम और तैयारी कर सकें। वैक्सीनेशन के लिए हमारी बहुत अच्छी यहाँ प्रगति है। वैक्सीनेशन हमने जब अभी कैंपेन चला था प्रशासन गाँव के संग, शहरों के संग, उसमें भी बहुत लोगों ने लगाई, इसके पहले भी लगवाई है। और अभी कोई ऐसी वो नहीं आ रही है कि लोग डर के भाग रहे हैं, जैसा कि हम मीडिया में देखते रहते हैं कई जगह, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है। जैसे ही कोरोना के केसों को बढ़ना चालू हुआ तो हमने तुरंत पिछले वीक में ही हमने हमारी तैयारी चालू कर दी थी। इसी कड़ी में हमने हमारा जो ऑक्सीजन प्लांट है वो विदिन 6 महीने के अंदर तैयार करवा दिया गया है और 10 से 12 ओपीडी बेड हमारे पास ऑक्सीजन के अवेलेबल हैं और ऑक्सीजन की 24 आवर की सप्लाई हमने सुनिश्चित कर दी है। और इसी कड़ी में हमने मेडिसिन भी उपलब्ध करवा दिए गए हैं, सारी मेडिसिन, और वैक्सीनेशन कंटिन्यू चालू है।
और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो जो जांच सुविधा है RT-PCR वो हमारे यहाँ पर रेगुलर की जा रही है। કોરોનાની રોકથામ ખાતર ચિકિત્સા મહેકમાને સાથે ही पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। जयपुर शहर आरएसआर राय इलाका में कोविड गाइडलाइन की पालना करावा खातर पुलिस आज जिलारा बस्सी उपखंड में कार्रवाई करी। एसीपी मेघचंद मीणा बताया कि 3 ठोरा माते करेगी कार्रवाई में मास्क नहीं लगावा वाला लोग माते कार्रवाई करेगी। तीनों थानाधिकारियों को इस संबंध में मीटिंग लेकर के नई गाइडलाइन की पालना कराने के लिए थाने के जो उपकरण लगे हुए हैं गाड़ियों पे उससे अनाउंसमेंट कराना और प्रतिदिन तीनों थाना क्षेत्रों में पैदल मार्च करना। वे जो बिना मास्क के लोग जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे, उनके विरुद्ध कोविड एक्शन लेना और चालान करना। इस प्रकार की कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है और प्रतिदिन की रिपोर्ट कंट्रोल रूम को रोज़ की रोज़ भेजी जा रही है। लोगों को, आमजन को जागरूक कर रहे हैं तो और जिनके पास मास्क नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं और उनको मास्क वितरित कर रहे हैं। और अब तक करीब रोज़ाना 25 से 30 चालान हम कर देते हैं और सबको मास्क वगैरह वितरित करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइन की पालना के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जयपुर राज शिक्षा संकुल में काल शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला एक निजी बैंक रिकाणीसू कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत बनाया गया 29 स्मार्ट क्लासरूम रो उद्घाटन कराया। शिक्षा मंत्री बताया कि सगला क्लासरूम सरकारी स्कूलों में बनाया गया है, जिनमें इन स्कूलों में पढ़वा वाला विद्यार्थियों ने नवीनतम तकनीक के जरिए अध्ययन करवारो मौको मिलेलो। संस्थाओं में स्मार्ट क्लासेज और पीने के पानी को शुद्ध करके पिलाने का काम तथा हमारे जहाँ पे मिड डे मील कार्यक्रम वगैरह चलता है, वहाँ की स्वच्छता वगैरह के बारे में ये 3 कार्यक्रमों को हाथ में लेकर इन्होंने काम शुरू किया है। प्रत्येक स्कूल में लगभग 3.5 लाख से 4 लाख रुपए की लागत से इन्होंने काम किए हैं और 29 शिक्षण संस्थाओं में ये काम किया है। दूसरी स्टेज में 30 स्कूलों को गोद लेने वाले हैं, उनमें भी स्मार्ट क्लासेस, ड्रिंकिंग वाटर और स्वच्छता के लिए काम करेंगे। तो मैं अपनी ओर से और शिक्षा विभाग की ओर से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने CSR फंड का बहुत ही सांगोपांग उपयोग किया है, क्योंकि शिक्षा का महत्व जितना है उसका और किसी का महत्व नहीं है। शिक्षा के पीछे सब कुछ है। गवर्नमेंट स्कूलों में ये काम किया है और आगे भी गवर्नमेंट स्कूलों में ये काम करेंगे। स्कूली छात्र और स्थानीय नागरिका ने सशक्त बड़ारी बहादुरी से परिचित करावा खातर केंद्र सरकार रा वीर गाथा प्रोजेक्ट के तहत उदयपुर रा कई स्कूलों में नवी शुरुआत करेगी है। CBSE बोर्ड रा छात्र ने सशस्त्र बल रा वीर जवान और योद्धा वाली कहानी ने ले निबंध लेखन के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। साथ ही इन खातर प्रतियोगिता भी आयोजित करी जा रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में वीर गाथा प्रोजेक्ट में मुझे काम करने का मौका मिला था, जिसके अंदर मैंने कविता लेखन के अंदर पार्ट लिया था और मुझे कल ही ये मालूम चला कि मैं राजस्थान के अंदर अव्वल आया हूँ। मुझे राजस्थान में फर्स्ट पोजीशन मिला। ये बात सुन के मैं, मेरे पापा, हमारा पूरा परिवार, हम सब लोग बहुत ही खुश हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है। मेरे परिवार वाले सब खुश हैं और स्कूल के प्रिंसिपल मैम वगैरह और मेरे यार दोस्तों के भी फोन आ रहे हैं। बच्चे को सब तरफ से बधाइयाँ मिल रही है। हमारा रोशल सुथार, जिसने हमारे स्कूल को दूसरी क्लास से ज्वाइन किया था, काफ़ी पुराना बच्चा है और बहुत ही होनहार है। कविताएं तो ये लिखता ही है, लेकिन ये साथ में गाना भी बहुत अच्छा गाता है। पढ़ाई में भी ये बहुत ही सिंसियर है। एक संस्कारी बालक है ये। मैं इसके भविष्य की बहुत ही उज्जवल कामना करती हूँ। जब मुझे ये पता चला कि इसका ये अवार्ड मिला है तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। मुझे इतनी खुशी हुई कि आप मुझे अगर बीच रात में नहीं बुलाते इस बच्चे के लिए तो चली आती। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रिकाणी सू काल कार्रवाई करता हुआ नगर निगम ग्रेटर जयपुर रा वित्तीय सलाहकार अचलेश्वर मीणा सहित 2 दलाल धन कुमार जैन और अनिल अग्रवाल ने गिरफ्तार करो गयो।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रा महानिदेशक भगवान लाल सोनी बताया कि नगर निगम ग्रेटर जयपुर में टेंडर प्रदान कर्या जावा सुलेर कामना निरीक्षण माप और बिल अग्रेषित और भुगतान कर्या जावा खातर जुड़ी फर्म सु बतौर कमीशन घूस लेवार आरोप में याने गिरफ्तार कर्यो गयो है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे असर चलता हो रही बारिश और ओलावृष्टि सु खेता में खड़ी फसल ने काफी नुकसान पुग्यो है। चौमुख क्षेत्र में काल रात भी ओलावृष्टि सु खेता में ओलारी चादर री बिजुगी इनसु विया फसल खराबाना लेर अटे किसान परेशान वह रहा है। स्थानीय विधायक रामलाल शर्मा सु मिलर किसान फसल खराबा रो मुआवजा दिलावा री भी मांग करी है। और जो पेड़ थे पेड़ वगैरह के सब गंजला के रखे हुए कुछ भी नहीं है। एक फुट के आसपास विधानसभा क्षेत्र के सामोद बुथेड़ा अस्तड़ा आड़ीसर अन्य ग्राम पंचायतों के अंदर ओलावृष्टि हुई है और ओलावृष्टि से किसानों का फसलों का काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि किसानों की तो आजीविका का उपार्जन यही था। पिछले 2 सालों से कोविड की लड़ाई के अंदर आम जन का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है और अब ये ओलावृष्टि की मार किसानों की कमर तोड़ने वाली है। इसलिए सरकार अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तत्काल प्रशासनिक अधिकारी इसकी गिरदावरी कराए और सरकार इनको मुआवजा देने का काम करे। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे चालता लाडला 2 दिन सु पेरी बिरखा शीतलहर चालबा सु जनजीवन प्रभावित वैर्यो है। प्रदेश रा पश्चिमी जिला में काल सु एक बार फेरू बिरखा रो दौर जारी है। इनके अलावा काल जयपुर सहित कई जिला में ओलावृष्टि हुई। मौसम महकमा रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि नुआ पश्चिमी विक्षोभ रे चालता जयपुर संभाग में भी हल्की सु मध्यम दर्जा री बिरखा वह सके है। वैसे ही पश्चिमी राजस्थान में सक्रिय हो चुका है। 8 जनवरी को इस नए सिस्टम का प्रभाव लगभग राजस्थान के ज्यादातर भागों में रहेगा। इस दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। वहीं नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के कुछ एक इलाकों में मेघ गर्जन के साथ 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। लगातार बने हुए सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिन का अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस औसत से नीचे दर्ज किया जा रहा है। तापमान में अगले 48 घंटों तक विशेष परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पश्चिमी राजस्थान से यदि बात करें तो 9 जनवरी से धीरे धीरे समाप्त होगा। वहीं पूर्वी राजस्थान से इस सिस्टम का असर 10 जनवरी से समाप्त होगा। तो कुल मिलाकर अभी भी अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा और 10 जनवरी के बाद राजस्थान में एक बार फिर से मौसम शुष्क रहेगा। और आओ एक बार फिर से जोवा मोटी खबरा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव री घोषणा। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में, जबकि पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 1 चरण में और मणिपुर में 2 चरण में वैला मतदान। 5 राज्यों में 10 मार्च ने वैली मतगणना। बीएसएफ अकादमी टेकनपुर ग्वालियर में पासिंग आउट परेड रो करो जा रहो है आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कया सीमा सुरक्षा बल देश री सर्वोच्चतम सुरक्षा बड़ा में सु एक। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर में कोरोना री स्थिति और रोकथाम री तैयारी करी समीक्षा। एलकारा ने कोरोना रा नोवा वेरिएंट ओमिक्रॉन ने लेर किनी भी आपात स्थिति सु निपटवारा दीना निर्देश। राजस्थान विश्वविद्यालय मनायो 31वां दीक्षांत और 76वां स्थापना दिवस समारोह। राज्यपाल कलराज मिश्र समारोह ने वर्चुअली कर्या संबोधित। उत्कृष्ट प्रदर्शन करवाला पड़े सरिया ने स्वर्ण पदक और पीएचडी धारका ने ऑनलाइन पार्टी डिग्री। प्रदेश में लगातार बढ़तो जा रहो है कोरोना संक्रमण। नोवा मामला रा बढ़वारे साथ ही एक्टिव मरीजा री संख्या भी बढ़ी। किशोरा और युवा में टीकाकरण खातर उत्साह सुशासन और प्रशासन में राहत। चालो इन बुलेटिन में नमस्कार।